Welcome to the Infinity IS Academy. Today's session of Ecogeny, we are going to present a very important concept, that is a bad bank. What exactly is a bad bank and whether it's a good idea or not? You must have seen in the films, Gulshan Grover talking, bad man, so bad bank. What exactly is the idea of bad man, bad bank, and how it works? We'll try to see today the aspects of it. So genesis of it, we'll start to first see. So US based Mirren Bank created the first bad bank very recently, not very back, 1988 only the idea has begun. The UK asset resolution bad bank has recovered nearly 50 billion pounds of loans in the US. So bank which is specialized in the recovery, it is, and they have recovered so much. That shows the potential of the idea and maybe a worth in India, where we had one of the highest NPAs, non-performing assets among the banks globally. One Sunil Mehta panel on NPAs proposed सशक्त इंडिया एम से कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म कर दे सशक्त इंडिया नाम की, पर समहाउ ये आइडिया अशक्त रही और कोई ऐसी सशक्त इंडिया फॉर्म ही नहीं हुई. तो आगे बैड बैंक प्रपोजल वाज डिस्कस्ड इन द FSDC मीटिंग ऑल्सो. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें भी बात की थी कि लग चालू करेंगे, नहीं हुआ, पर ना हो सका. गवर्नमेंट प्रीफर्ड मार्केट लेड रिजोल्यूशन प्रोसेस दैट टाइम कि मार्केट हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग और मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन निकालेंगे. पर देन द क्वेश्चन ऑफ NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अमंग द बैंक्स इन इंडिया, especially among PSBs, that is the public sector banks, kept lingering, and again government has to come back to discussion of the idea of a bad bank, whether it should form or not, or it should go ahead or not, like that. So the takeover of the bad loan is normally below the book value of them. तो ये टेक ओवर जो होता है बैड लोन का, वो बुक वैल्यू से कम लिया जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द लाइक इशू, अ टाइप ऑफ हेयर कट हैज टू बी टेकन while giving up the NPAs to the other entities by the banks. So what it is, how it works, like the function of a bank, it is बैंक की तरह काम करती है तो बैड बैंक कहते हैं. It also got a license from RBI, but not involved in lending and taking deposit. The core function of a banking is a lending and taking deposit, which is not a case with a bad bank. वो तो काम नहीं करती है. Initially funded by the government, start तो गवर्नमेंट करता है, but gradually banks and other investors start to co-invest. तो अदर कंट्रीज में भी गवर्नमेंट स्टार्ट करता है और प्राइवेट लेके उठाता है बाद में. इंडिया में मे बी इट विल बी लाइक स्टार्ट एंड एंड विद द गवर्नमेंट ओनली. कुड बी एस्टैब्लिश एज वन एंटिटी. वन एंटिटी मतलब एक ही एंटिटी होगी जो NPS कलेक्ट भी करेगी और NPS सेल भी करेगी. बट इन इंडिया व्हाइल फॉर्मिंग अ बैड बैंक वी डिसाइड टू गो फॉर अ ड्यूअल मॉडल, टू एंटिटी मॉडल. फॉर द ऑपरेशनल and the governance reason we thought of doing it. For the operational and governance reasons, instead of one entity we thought of two entities to be formed as a bad bank. So what are the names? Name please. So first is a National Asset Reconstruction Company. So very interesting word, national, will be seen like so it's a responsibility of the people of India to look after this bad loans with some entrepreneurs. These bad loans are not exactly all the time scam or a fraud. Sometimes it could be because of the environmental issues, permissions are not granted, bureaucratic delay, red tapeism, or simply the markets have changed and the project has not remained viable. There could be multiple reasons behind it. It could be pure scam also, like so many examples we know, from the Nirav Modi to Vijay Mallya to now recently ABJ Shipyard, and we can see the long series of such type of NPAs, non-performing assets, are built up by the banks in India. More than 51% shares of this company, it is already formed. National Asset Reconstruction Company is a bad bank. The bad bank has an interesting sober name, National Asset Reconstruction Company Limited. More than 51% shares will be owned by the public sector banks. So public sector banks will own it. Basically, will acquire and purchase identified NPA accounts from the bank. They will purchase the NPA accounts from the banks for the recovery purpose. Will take up the stress assets worth 2 लाख करोड़, कि 2 लाख करोड़ के स्ट्रेस एसेट वो उठा लेगी. तो उतनी बैंक की बैलेंस शीट साफ हो जाएगी तो बैंक्स कैन लेंड न्यू फंड्स टू द मार्केट, कैन बिल्ड अप द बेटर लिक्विडिटी इन द मार्केट. और उस तरीके से जो घोस्ट इज हॉन्टिंग द PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉर लॉन्ग टाइम, टू सम एक्सटेंट दे कैन गेट रिड ऑफ इट. दैट्स आइडिया. जब हम स्ट्रेस एसेट की बात करते हैं तो उसमें NPA तो आते ही है,
Non-performing assets. Non-performing assets are those assets whose principal or interest is not been recovered for 90 days. दो या दोनों में से एक भी 90 days रिकवर नहीं हुआ, उसको एनपीए कहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. या इवन स्ट्रेस एसेट ऑल्सो कम द रिकंस्ट्रक्टेड एसेट. ऐसे एसेट जिनको नए से लोन दिया है या उनका जो ईएमआई है वो स्प्रेड करके दिया है, इवन दे कम इन द रिकंस्ट्रक्टेड एसेट एज आइडिया. तो ये सब स्ट्रेस एसेट 2 लाख करोड़ का उठाएगी ऐसे अपेक्षा है बैड बैंक का. सो दिस कंपनी विल फर्स्ट परचेज बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एट एग्रीड प्राइस. अब ये काम कैसे करेगी, तो एक एग्रीड प्राइस पे लोन उठा लेगी एनपीएस बैंक से. देन विल पे 15% इन कैश. डील कैसे होगा, तो 15% तो कैश में दे देगी, तो बैंक का इमीडिएट फायदा है. सम रिकवरी एटलीस्ट, सम लिक्विडिटी विल बिल्ड अप, कैश फ्लो बिल्ड अप, एटलीस्ट दैट मच कैपेसिटी ऑफ फ्रेश लोन्स, जिसे क्रेडिट पर्स कहते हैं इकोनॉमी में. क्रेडिट पर्स इज अ न्यू लोन्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स टू द पीपल. तो वो तो बढ़ता है, वो तो फायदा होगा. And remaining 85% will be given in the form of a security receipts. They will be given as a security receipts के फॉर्म में दिए जाएंगे. If this 85% portion not recovered, अभी नहीं रिकवर हुआ सपोज, now recovery will start, they will try their best, bad bank, then difference will be paid from the guarantee. So in return there is a backing of a guarantee by central government. तो गवर्नमेंट will give the guarantee of rupees 30,600 करोड़ बजट में डिक्लेयर किया गया है. इतने अमाउंट की बैकिंग देंगे, विच विल बी वैलिड फॉर 5 years. 5 साल के लिए गारंटी गवर्नमेंट ने दी है. सो 15% इमीडिएट रिकवरी, रिमेनिंग 85% विल बी ट्राइड हार्ड बाय द बैड बैंक. और अगर नहीं रिकवर कर सके तो गवर्नमेंट इज रेडी विद द गारंटी फंड विच इज वैलिड फॉर द 5 years नेक्स्ट. So what is the critic on this all discussion? That average debt recovery in India is very low, hardly 27%. Not even 1/3 get collected actually of the recovery in India. Guarantee is as good as a recapitalization. So वैसे भी गवर्नमेंट जैसे एनपीए बढ़ते हैं, one has to according to the CRAR recommendations, capital to risk adequacy ratio of Basel 3, गवर्नमेंट has to recapitalize the banks continuously. तो ये आप गारंटी दो, ये रिकैपिटलाइजेशन करो, एक ही है. इस बार इंस्टेड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन प्रोविजन गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर द प्रोविजन ऑफ अ गारंटी. तो एक ही है. डेंजर इज दैट पीएससीज विल बाय देयर ओन बैड डेब्ट्स थ्रू द दिस कंपनी बड़ा बैंक. तो ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिसयूज इट. एक हाथ से लोन डुबाओ और दूसरे हाथ से वो खरीद लो और कहा कि कहा है यार, गायब हो गया, बैड बैंक के पास गया ये. तो बैड बैंक पे तो थोप देते, इसलिए तो उसको बैड बैंक कहते हैं. बैंक इटसेल्फ स्टार्ट विद द लॉस. तो इस तरीके से ये धोखा इसमें है. क्रिटिक है, दिस कंपनी शुड हैव अ सनसेट क्लॉज. ऐसे एक क्रिटिक ने कहा है कि सनसेट क्लॉज टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप रिकवरी के लिए ट्राई करो, एक टाइम बाउंड तक रिकवरी करो, नहीं तो गिव इट बैक टू द बैंक्स. पर ऐसे नहीं होगा तो देन इट विल बी लाइक कीप लिंगरिंग फॉर years and years into it. तो रिकवर भी नहीं करेंगे और बोलेंगे कि बैड लोन भी नहीं है. होगा कभी ना कभी रिकवर होगा, तो दैट विल बी डेंजर. लाइक if a bad bank fail to recover, then they have to be bailed out. Ultimately bailing out has to be done. किसी को तो बेल आउट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही करेगी. बेल आउट विल बी फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी. अल्टीमेटली रिकैपिटलाइजेशन हो या गारंटी फंड हो, जाता तो टैक्स पेयर के मनी से ही है. इन द बजट द प्रोविजंस आर मेड फॉर इट. तो इस तरह से ये जो हेयर कट लेना पड़ता है, हेयर कट इज अ लॉस. somebody has to suffer. Banks take it, and ultimately banks means the government, and government means the taxpayers who has to take a haircut. Sometimes it is so high that court has said that it's not haircut, it's a tonsure. आपने तो पूरा चकोटी कर दिया है, कहा सिर्फ हेयर कट लिया है. Meanwhile, there is a second entity will be also formed, that is the India Debt Resolution Company Limited, a second entity in the Bada Bank. Will try to sell the NPAs. अभी ये परचेज किए हैं वो पहली एंटिटी ने, Bada Bank जिसे हम कहते हैं. A second entity will try to sell and recover the money. More than 51% shares will be owned by the private sector bank. अभी थोड़ा ट्रिकी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल ओन द फर्स्ट कंपनी, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और जो डेप्ट रिकवरी कंपनी है दैट विल बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो एसेट खरीदेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर एंटिटी, और सेल करने का जो काम है अट्रैक्टिव, जिससे फायदा हो सकता है, वो प्राइवेट के हाथ में दिया है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, very unique one it is like. So it is neither completely private PAD bank, neither completely public. It's a half public and half private that has been there, like responsibility with the public entity and authority with the private entity. That type of model it is.
रिकवर्ड मनी विल बी रिफ्लेक्ट इन द सिक्योरिटी रिसिट्स, सिक्योरिटी रिसिट्स जो होंगे एसआई वो दिए जाएंगे, और एनईवी होगा नेशनल सॉरी द नेट एसेट वैल्यू जो एवरीडे डिक्लेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिकवरी, द नेट एसेट वैल्यू विल बी डिसाइडेड एंड ऑन दैट रिकवरी विल बी लाइक गुड देन एनईवी विल बी हाई, अगर रिकवरी कम है या नहीं है तो एनईवी विल बी लो, वो तो होगा ही है। अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट फॉर एसआर सिक्योरिटी रिसिट्स इज क्वाइट इलिक्विड, और अनफॉर्चुनेटली ये जो सिक्योरिटी रिसिट्स है उनका मार्केट इतना अच्छा लिक्विड नहीं है। तो वैसे भी अभी 85% जो पैसा मिलने वाला है सिक्योरिटी रिसिट केस में, कैन बैंक सेल इट इन द मार्केट एंड गेट रीड ऑफ अर्ली, तो ऐसे कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है। प्रेजेंटली जो मार्केट है वो भी इलिक्विड ही है। Meanwhile, let's have a comparison between the bad bank and existing ideas called ARC. There are already ARCs in the existing in the, पहले जब हमने bad NPAs हुए थे तब ये आइडिया लगाई थी, ARCs, asset reconstruction companies, or also called as asset management companies. So there's simple idea, they purchase the bad loans of the banks. कैसे लॉजिक चलता है कि यानी सपोज A बैंक है, B बैंक है, C बैंक है, D बैंक है, और किसी एक एक्स व्यक्ति ने ही सबको डुबोया है, इनको 300 करोड़ को चुना लगाया है, इनको 200 करोड़ को, इसको 100 करोड़ को, इसको 600 करोड़ को, तो ऐसे एक ही व्यक्ति अलग अलग बैंकों को चुना लगाता है, इन्हें मालूम भी नहीं होता। पर अभी एक एआरसी जब खरीद लेती है सब, तो उनको पता चलता है कि यार ये एक साथ में नहीं सबको चीटिंग की है, तो चलो उसके पीछे लग जाओ, तो बड़ी अमाउंट होती है, दे कैन अफोर्ड टू चेज हिम, दे कैन अफोर्ड टू अपॉइंट लॉयर्स, दे डू द गुड रिकवरी बिकॉज एक्सपर्ट इन दिस रिकवरी डोमेन, उनका काम ही वही होता है रिकवरी करना, तो बराबर रिकवर कर लेते हैं यार, वो फायदा होता है यार। और ये एआरसी का और फायदा क्या होता है कि एआरसी वाले कैसे प्रॉफिट कमाते, प्रॉफिट ही कमाते हैं, नुकसान में थोड़ी काम करता है। कि सपोज देना बैंक है, इनके 300 करोड़ है, तो ये ऑफर देता है सपोज 150 करोड़, इतना ही देंगे, वन टाइम दे देंगे ना 300 करोड़ के लिए, तो देना इतना ही है ना, आधा ही, बोलते कि आप ट्राई करो, तो आप ट्राई करो, तो देना बैंक निकालते कि हार्डली 100 करोड़ रिकवरी होगी, 100 होगी, ये तो 150 ऑफर कर रहे हैं, तो ले लो ना, बेच दो है ना, वन टाइम डिक्लेयर द लॉस ऑफ 150 करोड़ and get rid of the red notes in the balance sheet, and ultimately ARC recover something more than that। 150 करोड़ दिए है देना बैंक को, ये अगर 200 करोड़ भी रिकवर कर लेता है, 100 करोड़ तो नहीं होंगे, पर 200 करोड़ भी रिकवर कर लिए तो डायरेक्टली 50 कोटि करोड़ का प्रॉफिट है ना, तो ARCs प्रॉफिट में ही होती है। ऐसे नहीं कि ऑलरेडी 29 ARCs आर वर्किंग इन इंडिया, भारत में ऑलरेडी 29 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर एक्टिव, दैट विल बी सेड हाउ पॉपुलर दिस बिजनेस इज। तो कोई कहेगा अगर एआरसी भारत में है ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो इनकी जरूरत ही क्या है बैड बैंक की, पर नहीं, थोड़ा इशू है। देखते हैं कि बैड बैंक बिल्ड अप एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, while ARCs are registered under the RBI, ये RBI के अंडर रजिस्टर्ड होती है ARC। बैड बैंक टेक्स और ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस एसेट, ये सब तरह की स्ट्रेस एसेट उठा लेती है, पर ARC का ऐसे नहीं होता। वो देखते हैं कि कौन सी रिकवरेबल है, कौन सी वायबल है, और उन्हीं को हाथ लगाता है। सब एनपीएस नहीं उठाते, दे डोंट टेक ऑल एनपीएस इन द हैंड, दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द ARC। इसलिए तो ARC होते हुए भी गवर्नमेंट हैज टू सेपरेटली गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ बैड बैंक, क्योंकि ARC तो है ना, लेकिन उठा नहीं रहा है वो, उन्हें दिख रहा है कि रिकवरी नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम्स है उनमें, है ना, अभी वो क्या प्रॉब्लम्स है और क्या है वो बात अलग है ना। सो बैड बैंक इज येट टू टेक शेप प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा चल रहा है ये ऑलरेडी। ARCs आर वर्किंग एंड ऑल ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड। उनकी कैपेसिटी भी इतनी बड़ी नहीं कि इतने बड़े बड़े लोन उठाए, जैसे हमने देखा कि बैड बैंक एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अप द टेक ओवर द लोन ऑफ 2 लाख करोड़। केस 29 में कोई है माइकल ऑल ARC विच कैन टेक ओवर द 2 लाख करोड़ के लोन, तो उनकी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं है। तो इवन दैट इज वन ऑफ द केस व्हाई गवर्नमेंट हैज टू सेपरेटली थिंक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैड बैंक इन द इकोनॉमी। सो व्हाई बैड बैंक इज रिक्वायर्ड, अभी चाहिए क्यों है। सो ARC फेल टू रिकवर द लोन्स, ARC इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, छोटे छोटे लोन्स तो बराबर ही कर लेते हैं, बड़े बड़े लोन नहीं रिकवर कर पाते हैं ना, वो एक कारण है ना। बैंक्स लैक एक्सपर्टाइज, बैंक्स के खुद के पास एक्सपर्टाइज नहीं होती रिकवरी की, नादर दे हैड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड नादर दे हैड कैपिटल बेस स्ट्रॉन्गर टू डू दिस वर्क। पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है और कि वैसे भी NPS बढ़ रही है ना, पैंडेमिक हैज क्रिएटेड अ हैवॉक इन द इकोनॉमी व्हिच इज ऑलरेडी बैड शेप ऑलरेडी, and as you know daily 23 suicides are happening of unemployed people, more than 2 crore people have lost the jobs, thousands of companies have closed down, so no surprise in the economy the NPAs are supposed to go up in this situation. So gross NPAs in 2020 were 7.5 to now they are going to expected to go up to 13.5, so 7.5 to 13, so more than double, so that is
हाईएस्ट इन लास्ट 22 ईयर्स, 22 साल का ये रिकॉर्ड है यार। तो इस तरह से यानी इफ सो हाई द एनपीएस आर गोइंग अप, देन वी कैन से दैट बैड बैंक का समय आ चुका है, यानी दैट्स बीन सेड। बैड बैंक का टारगेटेड बैंकिंग विद द डोमेन एक्सपर्ट्स, बैड बैंक में सब डोमेन एक्सपर्ट्स होता है, देयर एक्सपर्ट्स इन रिकवरी है, बराबर वो इन्हें चेस करता है, तू यहाँ आ रहा है मैं वहां पे आऊँ, ऐसी बातें करता है और बराबर रिकवरी कर लेते हैं ये लोग। एडवांटेजेस ऑफ बैड बैंक, अभी क्या फायदे हो सकते हैं बैड बैंक के? तो मेक डिफॉल्टर्स अकाउंटेबल, तो रिकवरी तो करता है ना, तो अल्टीमेटली द डिफॉल्टर शुड कम टू नो, स्पेशली इंडिया हैज अ इंटरेस्टिंग केस ऑफ लाइक पीपल लाइक विलफुल डिफॉल्टर्स। ये विलफुल डिफॉल्टर बड़े इंटरेस्टिंग होता है यार, पैसा होता है सब कुछ होता है फिर भी ये सब डुबा के चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाता है। विजय मल्ल्या इज अ गुड एग्जांपल टू केस स्टडी। तो एटलीस्ट मेक देम अकाउंटेबल, दैट्स लाइक अ फर्स्ट थिंग। इट विल इंप्रूव द क्रेडिट मोबिलाइजेशन कल्चर, तो एक बार अकाउंटेबिलिटी हो गई, रिकवरी होने लगी, तो एटलीस्ट व्हाट इज गुड कल्चर विल इमर्ज कि लोन लेना है और वापस देना है। प्रेजेंटली देयर इज लाइक लुकिंग एट हाई एनपीएस, 83% ऑफ एनपीएस इन इंडिया आर बिल्ड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर, सो इट हैज बिकम कल्चर ऑफ नॉन रिपेमेंट। लेना है पर देना नहीं है, लेन देन नहीं है इसमें, तो फिर कल्चर विल बिल्ड अप of a credit mobilization, in that case a recovery happen, will improve the monetary policy transmission. Present with the high NPAs, बैंक की आदत क्या है कि even if the RBI reduce the repo rate, RBI reduce the CRR SLR bank rate, so they don't transmit it to the people, or they translate partially only, or if RBI policies fail to impact the interest rates in the economy. If that is the case, then it is advisable to like get rid of this NPAs through bad bank and thereby achieve the complete transmission of a monetary policy. Then NPA sale price comes under the preview of, अभी बैंक्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक्स भी बेच सकती है, नहीं ऐसे नहीं, वो भी रिकवर कर सकती है, पर वो कुछ एग्रेसिवली बेचने जाए, कुछ अच्छा करने जाए, तो क्या होता है कि उन्हें देखने के लिए सीबीसी है, विजिलेंस कमिश्नर, सीबीआई है, एंड कैग है, ये सब लोग यानी सर पे बैठे रहते हैं, दे स्टार्ट इंक्वायरी, सस्पिशियस हो जाते हैं कि बैंक मैनेजर ने किस लिए ऐसे किया है, what decisions they took is how, what is like ethics of it, तो then banks become hesitant, तो बैंक डर जाती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कर पाती। पर बैड बैंक कैन टेक अ बोल्ड डिसीजंस, बैड बैंक ऐसे नहीं है, दे ऑलरेडी गिवन सम मनी, और जितना वो करेंगे उतना वो ये होता है उनके हाथ में होता है, सो दे टेक अ बोल्ड डिसीजंस एंड compared to the commercial bank they can do the recovery. So in the return bad banks can realize the higher prices, being bold, being aggressive, वैसे भी बदनामी है ना, नाम ही है बैड बैंक, तो बदनाम हुए तो और बदनाम कितना होना है, तो बराबर वो रिकवरी कर लेते हैं। Challenges finally about discussing this bad bank idea. I hope you got most of the interesting discussion of it. The challenges are selling price of NPAs, how much haircut the PSB will take, कितना हेयर कट लेना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। अभी रिसेंटली कुछ इसमें ऐसे देखा गया कि सपोज 200 करोड़ का कंपनी है और 5 करोड़ में बेचा गया, वीडियोकॉन के केस में ऐसे हुआ। अभी 200 करोड़ की कंपनी 5 करोड़ में बेचे गए, तो ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सी रिकवरी है, व्हाट रिकवरी एग्जैक्टली इट इज लाइक, सो द क्वेश्चन मार्क आर पुट अपॉन द रिकवरी मॉडल इटसेल्फ इन दिस केस। गवर्नमेंट स्टेक इन द बैड बैंक प्रोन टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अभी गवर्नमेंट का स्टेक है बैड बैंक में, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होगा ही, एनपीएस ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही हुआ है, पॉलिटिकल डायरेक्टेड लेंडिंग हुई है और उसकी वजह से एनपीए बढ़े हैं, कोई बोल नहीं रहा है उसके बारे में, तो इन दैट केस अगेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा एंड अगेन द रिकवरी बिकम ट्रबलसम, तो क्या है व्हाट अबाउट दैट, तो वो इशू है। बैंक्स में लूज फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, अभी बैड बैंक पीछे है, उसको ही हैंड ओवर कर रहे हैं, तो फिर क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे उनको लग जाएगा, ये एक इशू है। मॉनिटरिंग ऑफ लोन में भी लूज, दे मे नॉट बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर द लोन्स, देयर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, वो वापस चार्ट हो सकता है जो पहले के जमाने में होता था, टू पे द अर्लियर लोन्स बैक, न्यू लोन्स कुड बी गिवन, पिछले लोन के लिए नए लोन दे दो, अलग बैंक से दे दो, ये एवरग्रीनिंग एक्टिविटी वापस से हो सकती है, सो ये सब डेंजर्स भी है इन द आइडिया ऑफ अ बैड बैंक। So bad bank do not address the structural weakness of PSBs, public sector banks such as management, management के issues अब तक ठीक से solve नहीं हुए हैं। So what we can see, the bad bank is just like banded, कि थोड़ी चोट लगे तो हम बैंडेड लगाता है, यहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत है, तो बैंडेड से कुछ काम बड़ा होने वाला नहीं है, तो बैड बैंक तो फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। ऑलरेडी एनपीएस आर वेरी हाई एंड ऑलरेडी सिचुएशन इन द कंट्री इज वेरी ग्रीम विद द इकोनॉमी एंड एनपीएस आर गोइंग अप डे बाय डे, देयर इज अ नीड टू क्लीन द बैलेंस शीट, स्टार्ट द रिकवरी and do it professionally. How much finance minister talked in the budget about a bad bank? Not a single word, एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने, and they are nothing talking about it, like taking it ahead. So surprising, like bad bank के बारे में उन्होंने आगे कुछ किया ही नहीं है,
So there is a need to like push this idea. There is a need to push this idea, and good bad, we should go ahead with it. So overall, we can conclude that bad bank is a good idea. Thank you for listening.